Once again, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. I think because of the network issues, I got disconnected, but again, now disconnected. So, very few people are there right now. Kaiso, Arbaz, Israr, and Ruqayya. Only three. क्या बात है भाई? इसरार, any idea? आज मास बंक तो नहीं है? चल भाई join. Issue join. इसके पहले किसका लेक्चर था? सर इसके पहले आमिर सर का लेक्चर था बट वो लेक्चर कंडक्ट नहीं हुआ एंड एक्चुअली सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाए जो था उसमें। Okay. We can wait for few minutes so that others can join. We have more 2 minutes to join. होता है किस किस का इशू होता है because all are not having proper network connection, proper availability of devices. Maybe we are considering this problem. So we can again wait for 1 or 2 minutes. Then we can start the session.
सर आप म्यूट पे हो। अच्छा, सॉरी, मैं इतनी देर बोला, सुना ही नहीं आपने। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सो in the last session we have started with the GSM architecture, and we have gone through the first one, that is RSS, that is radio subsystem. We know that our GSM architecture consists of these three subsystems. First is the radio subsystem, second is network and switching subsystem, and the third is operation subsystem. Okay, and after that we have gone through the diagram also. चला गया। Yes. So this is the GSM architecture. We have seen about it, and this part is the mobile station where a person is carrying mobile phone, and the SIM card is also already inserted in this particular mobile equipment, and that mobile equipment is being carried out by the user. Okay, so that user is traveling now. So the complete module can be called as a mobile station. So the first column, the first part is the mobile station, and the second section, the second subsystem, we can say that it is the basic station subsystem. Okay, that is not the part of the GSM. Okay, तो GSM के लिए हम लोग ने तीन अलग अलग बोले, RNO, NSS, sorry, RNO, तो R रेडियो, the network, and then operation subsystem. Okay, बट यहाँ पर ये अलग है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कैटेगराइज भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा उसको सेक्शनाइज किया है. So the second one is basic station subsystem, where BTS and BSC are combined, okay, shown as the basic station subsystem. The BTS is the BTS, we had to talk about that BTS are installed in our location at the top, or we can say at the terrace place of the society. The building का होता है terrace area. So at these places these are mounted, or maybe a separate tower or separate you know and we can say pole is mounted for that particular BTS and where it is installed. So ये भी होता है, and then BSCs are connected to this number of BTS. Okay, so those three BTS are connected to BSC, means that these three BTS are being handled by one BSC, and these two BSCs are handled by one MSC. Okay, so this BTS and BSC का जो combination है, that is the basic station subsystem. Okay, you need to just remember this diagram. If you remember this diagram, and if you can draw this diagram now, then you can write down the answer of every question, whatever which comes related to this particular GSM architecture. हाँ, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग ने रेडियो सबसिस्टम के अंदर BSS क्या है, तो BSS के बारे में पढ़ा, एंड देन आफ्टरवर्ड फिर BTS के बारे में पढ़ा, BTS को सेपरेटली हम लोग ने पढ़ा, देन BSC के बारे में हम लोग ने सेपरेटली पढ़ा कि हाउ इट इज़ डूइंग मल्टीप्लेक्सिंग, एंड देन लास्ट में हमारा MS, देखिए मोबाइल स्टेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला कि वी हैव अ मोबाइल इक्विपमेंट, दैट इज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, द इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिम कार्ड है, और वो मोबाइल फ़ोन एक यूज़र के पास में है, और वो यूज़र गाड़ी में बैठा है. ठीक है, सो एवरीथिंग, सबसे पहले सिम कार्ड मोबाइल के अंदर है, मतलब इक्विपमेंट में है, इक्विपमेंट यूज़र के हाथ में है, और यूज़र गाड़ी में बैठा है, एंड दैट पर्सन इज रोमिंग ओवर इन देयर. ओके, सो दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ मोबाइल स्टेशन. ओके, बस इतना है, एंड दैट सिम कार्ड इज हैविंग यूनिक, दैट मोबाइल फोन इज हैविंग यूनिक इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिसको हम लोग UMI नंबर बोलते हैं. ओके, तो ये तो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट टाइम तक. Let us move to the next section, the next part, that is network and switching subsystem. Okay, we can say this is the heart of the GSM, because यहाँ पर हमारे पास में MSC है, that is mobile services and switching center, जिसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं mobile services and switching center, that is MSC. Okay, as we can see, this is the heart of the GSM system, the architecture what we have seen, and it is formed by the network and switching subsystem. Okay, मतलब जो हमारा network and switching subsystem है, that is the heart of the GSM. NSS connect the wireless network with the standard public network, perform handovers between the different BSS, comprises functions for worldwide localization of users and supporting charging, accounting, roaming. में बहुत सारी चीज़ हम लोग उसको एक एक करके पढ़ते हैं. ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. द NSS कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क विद द स्टैंडर्ड पब्लिक नेटवर्क. पहला काम तो भाई पब्लिक नेटवर्क से भी कनेक्ट करता है. And now you can see how it is connecting. So now for each and every term we have to go back to the this architecture diagram. तो मैंने क्या किया था, पहले से एक प्रिंट स्क्रीन निकाला था, और प्रिंट स्क्रीन निकाल के उसको हम लोग पेंट में डाल देते हैं. ठीक है,
और पेंट में डालने के बाद में एक सेकेंड ना, डायग्राम अलग से हम लोग को मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ना एवरी टाइम वी हैव टू, ठीक है, फाइल सेव एज, भाई डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, GSM, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद रखना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा इसी के पास, इसके लिए मैं उसको एक अलग से इमेज बना लूँगा, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टू दी, हमारे स्लाइड पर ही रहेंगे हम लोग, एंड वी कैन कम बैक, हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। सो दैट विल बी इजी फॉर मी टू कम बैक ऑल्सो। ये रहा डायग्राम और ये रहा हमारी स्लाइड। तो स्लाइड के ऊपर हम आते हैं, शिफ्ट F5, चलो अब ये स्विचिंग और ये स्विचिंग ज़्यादा आसान है, ठीक है। ओके, so as you can see कि our MSC is connected to the public network, you can see, ठीक है। So what is the saying by NSS, that NSS connects the wireless network with standard public network. So our NSS, you can see over here, your NSS is connected to the public network, okay। तो यहाँ public network से connected है, पहली चीज बोले। Second, परफॉर्म हैंडओवर्स बिटवीन डिफरेंट BSS, ओके। तो ये BSS के बीच में, अलग अलग BSS के बीच में क्या करेंगे, मतलब किसको बोलेंगे, हैंडओवर परफॉर्म करेंगे। सो नाउ you know about the handovers, okay। Basically when the user is traveling and when the user is moving from one location to another location, okay। So what one cell has to do, the first cell has to hand over all the related files, all the related information to the cell in which the user is traveling, okay। एक यूजर से दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल में जब मूव करेगा तो वो सेल क्या करेगा, जैसे ही मूव कर रहा है तो जैसे जैसे जाता रहेगा, सो ही विल बी कमिंग, he will come to know, it will come to know, your cell one will come to know that my user is going away from me, okay, means it is traveling to any other cell, okay। And then when he will be going, जहाँ भी जा रहा है तो ऑब्वियसली he will be getting the information about it, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेटेड डेटा है, फॉर एग्जांपल इसने 50 सेकंड बात कर चुका है, ठीक है, या इसने 1 मिनट कॉलिंग पे बात कर चुका है। अब ये जो डेटा है वो क्या करेगा अपने पास, वो जाके क्या करेगा, किसी और को, मतलब जिस सेल में जा रहा है वहाँ के जो BSS है, और BSS के अंदर कौन है, BTS एंड BSCs है, ठीक है। इट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से जो भी अंदर, जो भी जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ के कंट्रोलर को वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर करेंगे। अब वो वहाँ जाके उसने अपना कॉल कंप्लीट किया 2 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। दैट 2 मिनट 50 सेकेंड को काउंट करके उसका जो बिलिंग रहेगा, जो अकाउंटिंग रहेगा, वो वहाँ पर फिर अपडेट होगा कि द यूजर हैज कम्युनिकेटेड फॉर 2 मिनट 50 सेकेंड। सो फॉर दैट अगर 1 सेकेंड 1 पैसे के हिसाब से अगर चार्ज करना है तो उसका कितना बिलिंग होगा, वो बिलिंग विल बी एडेड टू हिज और हर अकाउंट, ठीक है। सो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, या फिर मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, 50 MB यूज कर चुका हूँ, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई एम ट्रैवलिंग एंड मूव टू द नेक्स्ट सेल, ठीक है, मैं दूसरे रीजन में पहुंच गया, बिकॉज द सर्विसेज आर uninterrupted, as you all know, ठीक है। The services are uninterrupted, and I'm moving from one location to another location, and this is the thing that के I must get the service, okay, while on the move, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मेरी सर्विस चालू है, सर्विस ब्रेक नहीं हुई। यहाँ से मैं खारगर से नेरुल पहुंच गया, नेरुल से वाशी तक पहुंच गया, तो मैंने कितने, पता नहीं मैंने कितने सेल चेंज कर लिए होंगे, बट आई एम गेटिंग द सर्विसेज, दैट इज अनइंटरप्टेड सर्विस आई एम गेटिंग, ओके। सो क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मेरे खारगर से बेलापुर वाले को हैंड ओवर हो गई, बेलापुर वाले ने देखा, किया, जब बेलापुर वाले के भी हाथ से मैं निकल गया तो उसने नेरुल वाले या फिर वाशी वाले को हैंड ओवर कर दिया, वहां से कहीं और थाना चला गया, थाना वाले को हैंड ओवर कर दिया। इन दिस वे द थिंग्स और द इंफॉर्मेशन, द रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी हैंड ओवर टू द नेक्स्ट सेल or to the next controller in which I am traveling, okay। तो people are getting or not, समझ में आ रहा है आप लोग को। हैंडओवर के बारे में मैं पहले भी आपको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट स्टिल मैं अगेन डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके। तो हैंडओवर के बारे में वाइवा क्वेश्चंस एग्जाम में कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज हैंडओवर
एंड जस्ट प्लीज एक्सप्लेन इट इन थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि हैंडओवर होता क्या है, ओके। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडओवर, ओके। इंट्रा बीएससी, इंटर बीएससी, अलग अलग टाइप के 4 टाइप्स के हैंडओवर दैट कैन बी आस्क्ड, ओके। ये हम लोग अभी आगे इसके ऊपर आएंगे। सो हमारा जो एनएसएस का एक और काम ये भी है कि हैंडओवर को वो भी मेंटेन करता है, ठीक है। व्हेन द यूजर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन बीएसएस, ओके, व्हेन द यूजर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन बीएसएस टू द नेक्स्ट बीएसएस, और एंड यू नो दैट के इन वन बीएसएस what are there, in one BSS we have BTS and it is a BSc, okay. It's a combination of BTS and BSc that it becomes your BSS, okay, base station subsystem। तो खाली नामों का हेर फेर है, बाकी है कुछ नहीं। मोबाइल स्टेशन, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ये सीरीज और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है अच्छे से, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ तक? पहले मुझे बताओ समझा या नहीं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भी मैं म्यूट हूँ क्या भाई? People are understanding or not? Please reply. Yes, sir. Okay. Abdul Rahim, are you present? Abdul Rahim? Not. रुकैया? सुन रहे हैं अब्दुल रहीम? आवाज आ रही है ना? समझ में आ रहा है? बेटा बेटा थोड़ी आवाज कम करो, थोड़ा सा। आयशा आवाज कम करो। रुकैया की आवाज नहीं आई। कोची कर रुकैया, आर यू लिसनिंग और नॉट? या मोबाइल ऑन करके चले गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। So we were just discussing about this NSS, that is network and switching subsystem. Okay, so we have gone through this first point that can connect to the wireless network with the standard public network that you have already seen, like PSTN, ISDN, and data network and other public network. Also perform handovers between different bases. तो handover भी perform करता है। Second, comprises functions for worldwide localization of users and support charging। तो हाँ, सपोर्ट चार्जिंग के पहले आ जाओ। कंप्राइजेस फंक्शंस फॉर वर्ल्ड वाइड लोकलाइजेशन ऑफ यूजर्स, ओके। व्हाट इट मीन, मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू वापस बताता हूँ। सी, you know, two people are communicating, okay, when one person is calling someone, okay, so maybe if he is calling to someone who is on landline, okay, ऑफिस में रखा हुआ फोन है, तो maybe he or she is calling to someone who is on landline, मतलब पब्लिक नेटवर्क पे, ठीक है। so the mobile phone is calling to someone who is on the पब्लिक नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पर चलो हम लोग थोड़ा सा इसको, चलो यहीं से समझ लेंगे, जाने दो। सो मोबाइल इक्विपमेंट से यहाँ से हमारा कॉल कनेक्ट होगा टू माय नियरेस्ट बीटीएस, ओके। देन माय बीटीएस विल सेंड द इंफॉर्मेशन टू द बीएससी, then BSc will multiplex the information and give it to the MSc, then MSc will check it out whether the destination is present in the, again in the mobile station, the destination or the receiver is the mobile station, or that is located in the public network। so it has found that it is the public network, तो यहाँ से आपका कॉल कनेक्ट होगा पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। this process of connecting a call from mobile station to the public network, or from public network to the mobile station, or maybe from mobile station to mobile station, or maybe from public network to public network, anything, this process is called as localization and calling, okay। We'll be coming on this particular point, that is localization and calling, in the further chapter, in the not in further chapter, in the further section, ठीक है। सो ये लोकलाइजेशन और कॉलिंग हम लोग को आने वाला है, ठीक है। ये भी काम हमारा अभी एनएसएस करता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट,
मैं इसको थोड़ा सा इसमें इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज वंस दीज थिंग्स आर क्लियर and you are clear about the different points and different aspect of the different section like MSc, BSS, NSS, तो अगर ये चीज़ हमारी क्लियर रहेगी तो आगे चल के आपको ये पूरा इमेजिन करने में आसानी रहेगी. तो you will imagine your call. If you are calling someone from your mobile phone to any landline, तो आप सोच रहे होंगे हाँ मेरा जो नियरेस्ट BTS है वो कौन है. अच्छा यहाँ पे देखो नियरेस्ट मेरा BTS है, यहाँ पे टावर दिख रहा है. मे बी कोई किसी भी मतलब ऑपरेटर का हो, मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का हो, मतलब बहरहाल है टावर. तो फर्स्ट माई कॉल मेरा मोबाइल पहले अपने एंटीना से ट्रांसमिशन करेगा, ट्रांसमिशन करके वहाँ पर जाएगा. फिर वहाँ जाने के बाद में दैट BTS विल सेंड द सिग्नल टू द BSC. मतलब मेरे पूरे खारघर रीजन के अंदर एक BSC रहेगा. मे बी पॉसिबिलिटी, ओके, पॉसिबिलिटी है कि एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो हो, वहाँ से BSC को कनेक्ट हुआ, BSC से कनेक्ट होगा MSC को, एंड देन MSC विल कनेक्ट माई कॉल टू एनी लैंडलाइन फोन. ओके, मेरे घर के बाजू में क्यों ना हो वो लैंडलाइन फोन जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, बट दैट इज द प्रोसीजर, दैट्स अ कॉलिंग प्रोसीजर, और वी कैन से लोकलाइजेशन एंड कॉलिंग प्रोसीजर. ओके, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. एंड सपोर्ट चार्जिंग, अकाउंटिंग एंड रोमिंग ऑफ यूजर. चार्जिंग, चार्जिंग मतलब हमारा वो जो मोबाइल चार्ज करते हैं वो चार्जिंग नहीं. How much data you have used, okay, you have used data for example 100 MB you have used, so for 100 MB how much they are going to charge, okay, how your network, how much network service provider is going to charge for this 100 MB, 100 MB. okay, अब तो ऐसा है कि you have been allotted 1 GB और 2 GB, 1.5 GB, and accordingly you have to use. okay, so जहाँ डेटा आपका खत्म, आपका मेन बैलेंस में से आपका डेटा मतलब डेटा जाना शुरू हो जाएगा या फिर जो भी कटना शुरू होता है. So that is nothing but the charging for whatever you have used. They will provide the services according to your usage. Support charging, accounting, ठीक है, so they will maintain the information, they will maintain the information of your usage also. ठीक है, how much you have used. okay, so पूरे महीने में अगर आपने देखा होगा अपने डैडी का या किसी का आपने देखा होगा, बिकॉज अभी तो बहुत कम है लेकिन लोग यूज़ करते हैं फिर भी, पीपल हैविंग पोस्टपेड नेटवर्क या फिर पोस्टपेड सर्विस. सो दे आर गेटिंग लाइक बिल, पूरा एक उनको बिल आता है, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, वट एवर सर्विस प्रोवाइडर दे आर यूजिंग. So they are getting, or the receipt or the bill is getting generated in every month. So the bill is generated every month, and the things are mentioned like you have called on this particular date, आपने ये इसको कॉल किया था और इतने सेकंड इतने मिनट बात की थी, उसका इतना चार्ज हुआ ये. ओके, सो मतलब हर एक उनका पूरा बिल होता है, पूरा मतलब कि जो बिल होता है पूरा मतलब कॉलिंग का और डेटा का जितना भी यूजेज है आपका यूजेज बता के आपको चार्ज करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट द अकाउंटिंग. ओके, एंड रोमिंग ऑफ यूजेस. ओके, I may be, right now I'm present in Mumbai. Okay, maybe I will leave Mumbai today. I will left Mumbai today, and I will go to some other places like I will go to Hyderabad. I will go to any other place. Okay, so when I'm moving from my home location, so there are two basically we have two basic terms. One is the home network and second is the foreign network. Okay, क्या होता है हमारे home network? Basically the location where I stay. Okay, that is my home network. Okay, and the location which is not which is not the home network, that is the foreign network for me. Okay, so when I'll be visiting the other network, so that region can be called as the foreign network. एंड दैट फॉरेन नेटवर्क के अंदर मुझे जो हो सकता है कि चार्जेस, तो वो पहले होता था लेकिन अभी क्या था, रोमिंग वगैरह सब फ्री कर दिए, रोमिंग फ्री कर दिए, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं रहा. वरना पहले हम लोग अगर कभी ट्रैवल करना होता तो फॉर ईच एंड एवरी कॉल, फॉर ईच एंड एवरी इनकमिंग कॉल ऑल्सो मतलब यू हैव टू पे समथिंग. ओके, तो हर इनकमिंग कॉल के लिए भी पेमेंट, और फिर आपको, आप अगर रोम कर रहे हो और सर्विस चाहिए तो 50 रुपीज़ पहले स्टार्टिंग में आपको देना पड़ता. तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स थी पहले, बट राइट नाउ बहुत सारे मतलब चेंजेस आए, एंड द थिंग्स आर वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर गेटिंग फ्री. ठीक है, सो रोमिंग वगैरह फ्री हो गया ना, पहले रोमिंग के भी चार्जेस होते थे. तो when I'm moving from one location to another location, so I'm roaming from one location to another location, and in this condition also, in this situation also, I must get the services in properly.
ठीक है। तो ये रोमिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब रोमिंग होना चाहिए। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एनएसएस कर रहा है। पहला काम पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करना। सेकंड, हैंडओवर परफॉर्म करना। सी आई एम मेंशनिंग ऑल द टास्क सो दैट यू विल रिमेंबर द टास्क ऑफ दिस एनएसएस, देन यू कैन से इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर और टू समवन एल्स। ओके, so the first task is connect to the public network। so public network connectivity के लिए काम आएगा। सेकंड, आपको हैंडओवर परफॉर्म करवाएगा। थर्ड, वर्ल्ड वाइड लोकलाइजेशन एंड कॉलिंग में सपोर्ट करेगा। नंबर 4, चार्जिंग। नंबर 5, अकाउंटिंग। नंबर 6, रोमिंग ऑफ यूजर्स बिटवीन डिफरेंट प्रोवाइडर्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे मेरा एयरटेल का नेटवर्क है, मैंने चला गया शिमला में, ठीक है। अब शिमला में मैं थोड़ा सा रोहतांग सोलंग पे चला गया, वैलीज में चला गया, वहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा, वहाँ जियो का मिल रहा है। तो आई विल स्विच माई नेटवर्क फ्रॉम एयरटेल टू जियो। अब जियो में जब मैं एंटर करूँगा तो ही विल द जियो विल चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर, जो भी उनकी स्कीम है, उनका जो भी पॉलिसी है, उसके हिसाब से हम लोग चार्ज करेंगे। सो आई मे स्विच टू डिफरेंट providers in different countries also। okay, so this is all about the NS। so इतना छोटा सा स्टेटमेंट है, but it carries lot of task in it। okay, so one, public network से कनेक्ट कर रहा है, then we can say handover। third, localization and calling, charging, accounting, roaming। 7 टास्क मैंने आपको गिनवाया। so just mention, और दिमाग में मतलब mention करो, कहीं पे लिख के रखो या उसको ध्यान में रखो, और मतलब बस दिमाग में रखो कि these are the 7 tasks in the which is being performed by the network and switching subsystem। okay, coming to the next point, that is NSS consists of, again now NSS is having different we can say sections। one is the mobile switching center, or we can call it as a mobile services switching center। so we call it as a MSC only, as you can see in the diagram। कहाँ चला गया बे diagram? So we have MSC, okay. We have 2 databases, okay. Now this NSS consists of this MSC and 2 databases, okay। फिर इसको थोड़ा हम लोगों ने लास्ट वाले इसमें लिया है, EIR, AUC, OMC को हम लोगों ने दूसरे सेक्शन में लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं OSS, ऑपरेशन मेंटेनेंस सब सिस्टम, ओके। तो उसको हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में रखा है। So आपका मोबाइल सर्विसेज स्विचिंग सेंटर, that is MSC, and we have 2 databases or we have 2 registers, those are called as home location register and visitor location register। सिंपल है, ज़्यादा कुछ इनका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको याद में रखना है, ठीक है। सबसे पहले चलो एक बार रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल your GSM has been divided into into 3 subsystem। one is R, second is N, third is O। you know why I'm repeating all this thing again and again, so that you will remember at least कि हाँ इतनी बार repetition हुआ था। when I'm repeating all this thing, so that कि आपको बार बार याद में रहे, ये बार बार आपको दिमाग में आए, so that you will remember these points, okay। और उनके जो sections है आपको याद रहे, ठीक है। सो GSM RNO, ठीक है। रेडियो सब सिस्टम के अंदर हमारे पास में है BTS, BSC एंड मोबाइल सिस्टम, ठीक है, ये अलग हो गया। सेकंड, कम टू द NSS, दैट इज नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। इन NSS वी आर हैविंग, लास्ट में इसके लास्ट में मैं आपको अच्छे से डायग्राम बना के दूंगा और आप लोग से पूछूंगा, ठीक है। सो रिमेंबर द सब सेक्शन ऑल्सो, सब सिस्टम्स ऑल्सो। In NSS, that is in the network switching subsystem, which is the second subsystem of GSM, consists of MSC, mobile services and switching center, second home location register, and third is visitor location register। See, switches and databases consist of switches and databases। so who is the switch? Mobile services switching center, and we have 2 databases, one is home and second is visit। Coming to the next point now, at least we can cover this part, that is network and switching subsystem, okay। coming to the first one, that is mobile services switching center। अब ये इतना बड़ा box you can see in the middle, MSC, mobile services and switching center। ये जो आपको इतना बड़ा box दिख रहा है, to which these 1-2 databases are connected and 3 functions and 3 modules are connected, which are performing very important tasks, okay। EIR, AUC and OMCs are performing very important tasks, okay। I will let you know about all the tasks which is being performed by EIR, AUC, OMC and all that, ठीक है। okay,
सो कमिंग टू द एमएससी फर्स्ट, ठीक है, एमएससी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एमएससी, तो ऑलवेज रिमेंबर पूरा नाम मोबाइल सर. बेटा आयशा क्या कर रही है, खामोश रहो. Mobile services and switching center. Okay, so MSCs are very high perform digital ISDN switches. Okay, ISDN क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग? Okay, sorry for the disturbance. Okay, so MSCs are the high performance digital ISDN switches. So what does this switches does? बेसिकली जो हमारे घर पे जो स्विचेस होते हैं क्या करते हैं, ऑन ऑफ का काम करते हैं, मतलब ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, तो इनके दो काम हैं. तो वैसे ही स्विचेस को हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने मॉड्यूल के साथ में. लाइक योर एमएससीज आर डूइंग स्विचिंग वर्क. ओके, व्हाट दे आर स्विचिंग, if we are connected to any mobile network, like we are connected to the GSM network, then if any, there's any mobile call, to mobile call, then your MSC is the one who is connecting. Like let me show you this one. अगर मैं यहाँ से अगर दो लोग बात करना चाह रहे हैं, हाँ, फॉर एग्जांपल एक आपका मोबाइल फ़ोन ये, दूसरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पर है, ठीक है. सो व्हेन दीज टू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, देन ऐसा नहीं होगा चलो बाजू में है तो बाजू में मेरा कॉल हो जाएगा. This is not like that. First, your mobile equipment will get connected to the BTS, then BTS to BSC, then BTS BSC to MSC. Then MSC will check with, and it will take the help of HLR and VLR, and with the help of this, उसको पता चलेगा अरे ये तो आपका मोबाइल फ़ोन है. तो ये क्या करेगा, मे बी आपका जो मोबाइल इक्विपमेंट है वो ये वाले BTS से कनेक्टेड है, ठीक है, सी माई कर्सर, ये वाले BTS से कनेक्टेड है, या फिर समझ लो ये वाले BTS से कनेक्टेड है. थोड़ा सा और हम लोग को ट्विस्ट मिलेगा. तो द रिसीवर मोबाइल फोन इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर BTS टू विच आई एम मार्किंग राइट नाउ. तो यहाँ से आपका MSC देखेगा. ओके, तो फिर आपका MSC भेजेगा ये वाले BSC को सिग्नल, ठीक है, ये वाला BSC आपके ये वाले BTS को सिग्नल भेजेगा, एंड दिस BTS विल सेंड द सिग्नल टू द डेस्टिनेशन और टू द रिसीवर मोबाइल फोन, ठीक है. तो ये आपका कॉल कनेक्ट होना है MSC के थ्रू ही. Even you are calling the person who is beside you, but the call will get connected through MSC. मतलब switching center will come into action, will come into picture, and it will connect your call. Okay, whether you are calling to any mobile phone or whether you are calling to any public network, to any landline phone. Okay, so your MSC is going to come. Okay, your MSC will come into picture. Okay, so you need to remember this. So MSCs are high performance digital ISDN switches. Why it is called ISDN switches? Because your MSC is going to handle all the kind of services like calling services, data services, public network की services. तो सारी network को क्या करेगा, साथ में रख रहा है, ठीक है. तो ISDN switch हम लोग इसको बोलते हैं. ISDN क्यों? Because we have all the services integrated. We have all the services integrated in this particular system. So हम लोग इसको ISDN switch बोलते हैं. इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड या फिर इंटीग्रेटेड स्विचिंग डेटा नेटवर्क करके ऐसा कुछ नाम, बट है इंटीग्रेटेड. ओके, इंटीग्रेटेड मीन्स ऑल अदर सर्विसेज आर ग्रुप टुगेदर एट वन प्लेस. तो सारी सर्विसेज इसके पास में है. इसके लिए अब चाहे अगर आप डेटा भी यूज़ करो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग द डेटा, अगर आप डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं, अपना इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं, so first your request will be connected through BTS, through BSC, through MSC चेक करेगा अपने डेटाबेस वगैरह में, अपने ऑपरेशन वगैरह AUC जहाँ भी चेक करना है वहाँ चेक करेगा, या जो डेटा नेटवर्क है इससे कनेक्ट है इससे भी चेक करेंगे. एंड विल कम टू नो कि या दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ ओनली 50 MB लेफ्ट. ओके, तो 50 MB इसको अलाउ कर देगा. चलो ठीक है, ये आपका बंदा 50 MB यूज़ करे. एंड आफ्टर कंप्लीशन जब 50 MB खत्म हो जाएगा तो आपका डेटा नेटवर्क चिल्ला के बोलेगा आपके MSC को, भाई उसका डेटा नेटवर्क खत्म हो गया, उसको इन्फॉर्म कर दो, उसकी डेटा सर्विसेज कर दो बंद. तो आपका MSC क्या करेगा, उसको इन्फॉर्म कर देगा
you have only 10 MB left. Okay, इतना पहले warning देगा, बाद में data network बंद कर देगा. So what all the services, whatever the mobile users are getting, so it is through MSC. मतलब मेरे कहने का जो पर्पस है वो ये है कि आपको जो भी सर्विस मिलेंगी, योर एमएससी विल कम इनटू पिक्चर. दैट्स व्हाई योर एमएससी इज सो मच इम्पोर्टेंट इन एनएसएस, एंड दैट्स व्हाई दिस एनएसएस इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ एनी जीएसएम नेटवर्क. Okay, so your NSS is the heart of any GSM network, and in your NSS we have MSC who will always come into picture for every communication, whether it is a voice call or the either it is a data network usage. Okay, maybe it is calling to any other landline phone, whatever it is. Okay, but your MSC will come into picture and will perform the task. Okay, by means of other modules also like BTS, BSC, MSC. MSC will check अपने जितने भी pointer लोग हैं. Okay, like all the pointers are like HLR, VLR, EIR, AUC, OMC. All these are the pointers of MSCs. Okay, so all these pointers will help MSC in order to perform the required task. Okay, so in this way your MSC will work. Whatever statement I have taken from the book, they're having lot of meanings. Okay, तो उसको एक स्टेटमेंट को हमारे पास में लिखने के लिए बहुत सारा है. इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा थोड़ा अगर समझते रहेंगे, नॉट टेलिंग यू कि भाई पूरा एकदम अच्छे से आप आ गया, एकदम बाय हार्ट हो गया, नॉट लाइक दैट, बट स्टिल थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टॉपिक, देन यू कैन रीड इट लेटर. आप घर पे जाके एक बार रीड कर लो, एग्जाम के टाइम पे एक बार रीड कर लो. आई एम श्योर यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम योर ओन without working hard on that particular topic. They set up connections to other MSCs and to the BSCs via the A interface. Okay, now your MSC is connected to your BSC. कौन सा इंटरफेस है बीच में? हाँ भाई साहब बताओ हम लोग को, MSC और BSC के बीच में कौन सा इंटरफेस है? दैट इज A interface. Okay, so your A interface is there. No one is answering, huh? Only listening. So there's a interface from which your MSC and BSCs are connected. Okay, and form the fixed backbone network of the GSM system. The backbone which you can see over here, mobile equipment से BTS, BTS से BSC and BSC से MSC. This is the strong backbone. ठीक है, this is the very very strong backbone जो कि आपको यहाँ पर मतलब एटलीस्ट BTS, BSC and MSC, ये जो तीन जो कनेक्टिविटी है which are done from ABIS and A interface, इनके थ्रू जो आपकी पूरी एक बैकबोन बन रही है, so that is very very strong. Okay, coming to the next one. So ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था MSC के बारे में. सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं. Typically MSC manages several BSCs in a geographical region. As I told you that as per the area demand, as per the area, the density of the area, the BSCs can be installed. In the same way, the BTS can also be installed according to the density of areas. Okay, the area, if the area is having more density like Govandi, Mankur and Kurla and Bombay and Mumra, Bhiwandi, so like these areas very congested. Okay, and these areas are having more population. So in order to have better service, we have to mount or we have to implement multiple BTS. After very very short distance, we have to mount those BTS. Okay, तो जगह जगह पे हम लोग को माउंट करना पड़ेंगे. आप लोगों ने देखा भी होगा शायद गोवंडी में जो लोग बिलोंग करते हैं, या कुरला में या मुमरा में जो लोग मतलब जो लोग उसको बिलोंग करते हैं, वहाँ पर देखा होगा आपको थोड़े थोड़े लोकेशन से, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ही आपको यू विल फाइंड लॉट ऑफ BTS एंटीनास एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ओके, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इतनी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, यू नो अबाउट सेल ब्रीथिंग एंड सेल श्रिंकिंग. ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेंगी तो आपका जो एरिया वो कम से कम होता जाता है. ठीक है, और जैसे एरिया कम होगा तो ओनली मतलब द नंबर ऑफ यूजर टू होम इट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विल बी लेस. ओके, तो इतने छोटे एरिया में उतने ज़्यादा लोग आ गए. और अब यहाँ की बात करेंगे फॉर एग्जांपल नेरुल एंड द खारगर एरिया एंड द अदर द एरियाज विच आर हैविंग लेस पॉपुलेशन, so more area can be covered. Okay, your BTS can cover more area because the density is quite low. Okay, so based on the density of the area, the BTS and BSCs can be mounted and can be installed. So MSCs manages several BSCs. आपका MSC several BSCs को क्या करेगा, maintain करेगा. और in the geographical region,
A gateway MSC, that is GMSC, has additional connection. यहाँ पर देखो GMSC आपको दिखाई नहीं गया, यहाँ पर होता है एक GMSC। जब जब आपके पब्लिक नेटवर्क को जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल और होता है जिसका नाम है GMSC, जिसको बोलते हैं गेटवे MSC। मीन्स वॉट एवर कनेक्शन विच रिक्वायर्ड द एक्सेस ऑफ PSTN ISDN डेटा नेटवर्क, उसको GMSC के थ्रू जाना होता है। मतलब जैसे कि आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। पहले ज़माने में जब किसी को बाहर जाना होता था, मतलब आपके मुंबई से या इंडिया से बाहर जाना होता था, तो वो गेटवे ऑफ इंडिया के थ्रू जाता था, बिकॉज उसका नाम ही ऐसे पड़ा है, गेट अवे फ्रॉम इंडिया। So in the same way, the connection who is going away from the MSC, the connection who is going away from the MSC, it has to pass through GMSC, that is gateway MSC, okay, which is not shown in this diagram. We'll let you know in the later section. Understanding or not, please let me know, because this is very very important, okay। important ये है कि आप लोग समझें, important ये नहीं है कि मैं बोलते जाऊं और मैं आगे बस चलते जाऊं, ठीक है। important ये है कि आप लोग समझें। If people are understanding, then please reply. I think you people are not understanding. Only these 4-5 people always reply. Others do not reply. I don't know what they are doing. Just replying so that I will come to know that these number of people are understanding the concept and the lecture. Okay. ठीक है, चलो चलते हैं आगे। So that GMSC is not shown in the diagram. I will let you know about that GMSC later when we'll be learning about the interfaces and all that. Okay. So coming back to the MSC. So MSC manages several PSCs. देखो अभी डायग्राम समझ के आप लोग बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर MSC मैनेजेस several PSCs, 1 2 3 4 जितने भी होंगे उसको मेंटेन कर, ठीक है। And this BSC is maintaining several BTS also. In the same, you can write a gateway MSC has additional connection to the other fixed network. Okay, these are the fixed network, PSTN ISDN, these are the fixed network. And in order to connect these fixed network, your MSC connection has to pass through one GMSC. यहाँ पर एक GMSC होता है, ठीक है। such as PSTN and ISDN, मतलब उसको PSTN ISDN पे अगर जाना है तो उसको GMSC के थ्रू जाना है। That is not it. Okay, coming to the next point, that is home location register. I think we can cover this, at least we can cover this HLR. इतना भी नहीं किया तो हमारा क्या हुआ connect। So home location register. So this is the very first database through which your MSC is connected, and your MSC is taking help in order to forward the connections to the proper destination. आपका MSC इस HLR की help लेता है so that the communication can be properly destined. Okay, उसको proper destination के connection पे connect किया जा सके। Okay, so the very first register, or we can say the very first database to which your MSC is connected is home location register. HLR is the most important database in the GSM. Okay, the very first thing, the most important database in the GSM, as it store all user relevant information. User की पूरे जन्म कुंडली जो कुंडली होती है, that is stored by the HLR, ठीक है। comprises static information such as mobile subscriber identity number, MS ISDN नंबर। मैं आपको चल के बताऊंगा अलग अलग टाइप के जो यूनिक नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। MS ISDN नंबर, IMA नंबर, ISDN नंबर, ऐसे अलग अलग नंबर्स होते हैं। आई विल लेट यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो एक उसमें से नंबर होता है MS ISDN नंबर। So your HLR is having all these static information like MS ISDN number, मतलब मोबाइल सब्सक्राइबर ISDN नंबर, सब्सक्राइब्ड सर्विसेज, कॉल फॉरवर्डिंग, रोमिंग रेस्ट्रिक्शन, GPRS, उसने डेटा सर्विसेज लिया है, उसने वॉइस कॉलिंग लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने 399 का रिचार्ज कराया, 399 आजकल में हो गया 598 का, ठीक है। So if I have recharge of 598 rupees, okay, so it means I will be getting 2 GB per day. So this is my scheme now. I'll be getting 2 GB per day, and I'll be getting 100 SMS per day, and I'll be getting unlimited call in Airtel I'm talking about, ठीक है। I don't know about the other service provider, but यहाँ इसकी अगर बात करेंगे तो ये सारी सर्विस हम लोग को
So these are the services to which I am subscribed right now. ठीक है, so all this information will be stored in the HLR. ठीक है, तो HLR हमारा इतना इम्पोर्टेंट है. उसके बाद में हमारे पास में है डायनामिक इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नीडेड. एग्जाम्पल द करंट लोकेशन एरिया, जिसको हम लोग LA बोलते हैं, लोकेशन एरिया ऑफ दी मोबाइल स्टेशन. आपके मोबाइल स्टेशन फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इट इज नॉट इन द करंट लोकेशन, राइट नाउ इट इज प्रेजेंट इन सम अदर लोकेशन, किसी और एरिया में है. राइट नाउ आई एम नॉट इन द खारगर एरिया. Right now I am not in the Kharghar area. For example, I'm in Mumbai right now. ठीक है, so my HLR must be knowing my current location. मेरा HLR मेरी current location पता करके उसको store करेगा. So this is also one kind of information which is going to be stored in the HLR. ठीक है, just remember what are the different information your HLR is storing. Okay, so HLR is the most important one, storing all relevant information, user की relevant information. It is having MS ISDN number one. Number two, all the subscribed services like call forwarding. पहले कॉल फॉरवर्डिंग के लिए भी सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था. ठीक है, क्योंकि मेरा कॉल आज से मेरे नंबर का कॉल अगर मैं नहीं उठाया तो मेरे दूसरे दोस्त को जाएगा या मेरे भाई को जाएगा. सो दिस इज अ वन सर्विस वी यूज टू टेक इन द अर्लियर डेज. तो वो पहले की सर्विस लिखा हुई. नाउ राइट नाउ वी कैन से, अच्छा रोमिंग भी अभी फ्री हो गई है. सो वी कैन से दैट द रोमिंग सर्विसेज आर आल्सो फ्री. सो वी डोंट हैव टू सब्सक्राइब फॉर दैट सर्विस. अदरवाइज मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर जाते थे तो उसके लिए पहले हम लोग 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ पहले पे करना पड़ता. सो दैट वी विल बी गेटिंग द कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स के लिए भी हम लोग को पहले कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था. आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग द इनकमिंग कॉल. ठीक है, उसके बाद में आउटगोइंग के लिए आप अलग से रिचार्ज कराओ, देन यू विल बी गेटिंग दिस मच. पहले 2010 में वी वेंट टू शिमला मनाली. सो एट दैट टाइम वी फेस दिस पर्टिकुलर इशू. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा मोबाइल भी फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन था. सो लाइक वी हैव टू सब्सक्राइब फर्स्ट. पहले रोमिंग का पहले हम लोग को देखना पड़ा, तो रोमिंग के अंदर देख के फिर जो सर्विसेज लेना पड़ी हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी किए थे, तो उनको पहले सर्विसेज लेना पड़ी. उसके बाद में वहाँ जाके फिर एटलीस्ट कॉल आते थे. कॉल आने के बाद में फिर उसके बाद में फिर हम लोग को अलग से रिचार्ज करके फिर उसको करना पड़ा. तो लाइक वाइज पहले ऐसा था और उसको यूज़ करते भी थे. तो योर HLR स्टोरिंग ऑल दिस स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. ठीक है, तो ये सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपका HLR स्टोर करता है. कहाँ है अभी आपका बंदा, यहाँ नहीं है, होम लोकेशन पे नहीं है, तो कहाँ पर है. सो वहाँ का इन्फॉर्मेशन हम लोग को HLR में स्टोर करना होता है. तो योर GSM स्टोर that information also that information in your HLR. What is the current location of your user. Okay, because इतना तो क्लियर है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो माई सेल और माई टावर नोज मी. ठीक है, कम से कम मैं इतनी देर ये लोकेशन पे रह रहा हूँ, तो भाई ये मतलब उसका होम लोकेशन होगा, है ना. इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, देन दैट एरिया विल बी अपडेटेड इन माई HLR. Okay, dynamic information is also needed. Current location of the mobile station, the mobile subscriber roaming number, MSRN. देखो एक और नंबर के बारे में पता चला. वी आर 5 मिनट्स में डिले कर दिया, बस कंप्लीट हो रहा है. तो MSRN नंबर भी एक होता है, मोबाइल सब्सक्राइबर रोमिंग नंबर. स्मॉल वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज MSRN. ओके, दैट इज मोबाइल सब्सक्राइबर रोमिंग नंबर. Mobile subscriber roaming number. Okay, so when you are going out of your area and you have subscribed the roaming services, then you will be allotted one special number. पहले होता था, अभी होता है कि नहीं होता, but we are not aware about. Okay, and we are not going through all this procedure. अगर allot हो भी रहा है तो we don't know about that. Okay, because वो सारा का सारा उनके पास में रिकॉर्ड होता है, मतलब HLR में रिकॉर्ड सेव होगा, VLR में रिकॉर्ड सेव होगा, ऑल दैट. ठीक है, so a user is allotted with the MSRN number. So that MSRN number भी होता है, and the current VLR and the MSC. अभी फिलहाल उस कौन से लोकेशन में है और वो कौन से MSC को कनेक्टेड है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इन खारगर, सो आई एम कनेक्टेड टू 1 MSC. ओके, बट इफ आई गो टू शिमला, तो आई विल बी कनेक्टिंग टू अनदर MSC. ठीक है, और ये वाला MSC और ये वाला MSC दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे. ठीक है, बट आई एम कनेक्टेड टू अनदर MSC. तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपके HLR में स्टोर होती है. As soon as your MS leaves its current location, okay, we'll stop over here. Okay, and
हम कल VLR के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इसको हम लोग रिवाइज करेंगे एंड देन we'll learn about the VLR also. Okay, thank you so much. I hope you enjoyed the session and you understand what we have learned. I'll stop the recording first.